Good afternoon and welcome back. Actually, there was a power cut, so that is why this delay in arranging the things. Now we have our next expert, Dr. Amod Kumar. He's Chief Scientist in Central Scientific Instrument Organization, Chandigarh. Dr. Amod Kumar has a vast and rich experience in the field of intelligent instrumentation, and he has done his PhD from IIT Delhi and has been guiding various projects, various PhDs in the area of biomedical instrumentation. And today he will be delivering an expert talk on intelligent instrumentation. Thank you, Ritla. So, and good morning. Still, it is morning. Yeah. So, friends, I'll be speaking on intelligent instrumentation, and I think it will be 1 hour or between 1 hour and 1.5 hour talk. So, let us see what are the ingredients of intelligence. We can divide the whole journey towards intelligence for instruments in 4 parts. These 4 parts are technology, software, architecture, and the intelligence part of it, the artificial intelligence. So let us see how this journey took place over the years. First of all, we had sensors and devices based on mechanical concepts. Like initially when wheel was developed, when wheel was invented, sort of that was the first device. You can say it was not a sensor, of course, but it was a device towards instrumentation. Of course, this was, we can call it a sort of instrument still. Okay. And basically rotational motion was discovered for the first time with the wheel. Initially, you must have heard that how the time was recorded. It was monitored by sun clocks. So that was also a non-electronic method. Call it mechanical or common sense, whatever. So our journey started from there, the sensors and transducers and instruments. Then when electronics age came, roughly in the beginning of 1900, then after the discovery of electron, vacuum tubes appeared in the market. Everybody knows what are the disadvantages, why they did not get popularized. Then came the semiconductors, the transistors, diodes, other devices, SCRs, all those things. And then we started integrating these devices. Okay, digital electronics came, small scale integration, medium scale integration, and large scale integration. And then microprocessor, very large scale integration came. Now we are into the era of optical devices, basically. Everybody wants that our computing should be done by optical means. Reason being that photons, the velocity of photons is much more than the velocity of electrons. So we want to go at the speed of photons. So if you look at this thing, advancement, these things, packing density on a chip, the power delivered by the device, number of operations, and memory, all these increased with time. We got richer and richer in these aspects. So that means technology advanced like this. Let us look at the software. Initially we had the language of zeros and ones. That was the machine level language. Okay, corresponding to one instruction, there was one code of machine language, a combination of zeros and ones, be it a 4-bit and then 8-bit, 16-bit, but zeros and ones. And it was so difficult to understand it. Okay, suppose I say, for example, my name is, let's say you do not know my name, Amod Kumar. If I say that my name is 0111010111, after some time you will forget it. It's not able. Similarly, the instructions were very difficult to remember in machine level language. So then we thought of going for some sort of language based instructions, and those were assembly language instructions. Like if you want to store something, STO or STA, store accumulator, load accumulator, LDA, such
those mnemonics, those are called mnemonics. No? So that made things slightly easier, that you don't have to remember 0 and 1s, you have to remember only the 3 alphabet or 4 alphabet, whatever code. High level languages, C, etc., they appeared. Then Lisp and Prolog, these are the artificial intelligence languages. All puzzles and all, all the search techniques which are existing in the artificial intelligence, they use Lisp and Prolog till today. 4th generation language, object oriented, like C++, and C++ is the, I mean, you can say the oldest and capability wise the minimum object oriented. There are much better language than distributed language like Java. But what we want from our computer today, we want that our computer should understand the instructions in natural language. Are you getting me? We say that open the file, just like we give the command to a person, and he does the job. Similarly, we want that whatever we say to the computer in our own language, it should be able to understand. So this is the area of research, processing of natural level language, independent of the speaker. I mean, whosoever says, it's not that a specific person is recognized by the computer, others are not recognized. That is not desirable. Everybody should be understood by the computer. Of course, the vocabulary will be limited, that we all understand, that it cannot understand everything on the earth, but certain instructions which are very common, it should be open the file, this and whatever you get in the menu. So that means communication has gone better, natural input-output facilities, and the programming has become modular over the years. So software-wise, we have progressed in this manner. And let us say that architecture-wise. Architecture-wise, initially we had simple microprocessors. Everybody knows the whole system was based on a single processor, and it used to do all the jobs, calculation as well as control signal generation, anything and everything. Then initially it was slow because it has to do everything sequentially, one instruction after the other. Then array processors. Array processors means there will be processors laid horizontally as well as vertically. I mean, the one set of data will be processed by, let us say, one processor, and one function will be done by the first processor. On the same data, second function will be done by the second, third, and similarly, other set of data, let us say you are analyzing the data of weather. So probably, just an example, that North Indian weather is being analyzed by one set of processors, West India, South India, like that. All of them are carrying out the same task maybe, but on different sets of data. And within the column, processors are doing different tasks on same set of data. In North ka data hai, so somewhere some addition is going on, somewhere some multiplication on the same data. So this is called array, horizontal place as well as vertical. Special purpose chips, that many chips appeared in the market which you could carry the arithmetic operations very fast. And if it is meant for, let us say, multiplication of two signals, it could do multiplication within no time, but for other operations it will take a lot of time. Supercomputers for large data processing, parallel computers, VLSI, array processors, distributed processing in the process plants. But now what we want? Optical computer. Again the same thing. We want optical components, and our signal is photon stream, not the electron stream, not a bunch of photons, light, and all related components which can process this thing, optical signal directly without converting into electrical. वो नहीं चाहिए. We do not want that. If it is getting converted into electrical and then being processed, the whole beauty is gone. Again, we are back at the speed of electron only. Photon processing, light processing, it's light energy ka processing चाहिए. So that means over the years, what has happened is shift from von Neumann. Initially there was
these architectures were defined. Von Neumann architecture is the one which is initially there was Harvard architecture. Harvard, you must have heard these words, I think. Harvard architecture. Harvard architecture was having a separate memory for data and instructions. And then somebody thought, after all, where is the need to have two memories? Why not one memory only? So there was only one chip, memory chip, and it was divided functionally into two parts. One part used to carry the instructions, the other part used to carry the data. Okay, so that was modified Harvard architecture. When the two chips were separate, one for data, one for this, that was simply Harvard. Then single chip, but two parts of it, and the segmentation, Harvard architecture. But then third von Neumann architecture that came, which says that no, that is not required. In between the instructions, there will be the relevant data. And a load accumulator with, let us say, any number 50. So that means there will be a code for load accumulator, whatever. And there will be 50 as the third byte or the second byte, whatever. It depends on the how much long instruction it is, depending upon the instruction. But idea is that instruction and data, they must stay together. Right then and there, the instruction gets the data. That increases the speed manifold. That is called von Neumann architecture. So over the years, there is a shift from even that von Neumann, which was supposed to be invincible and very perfect architecture, to parallel processing. Parallel processing chalti hai, sorry. And in process plant, distributed, wherever whatever processing is required at that particular station, so that processing is done, and then there is a host computer, jahan pe ki whole data is integrated. ठीक है ना? Artificial intelligence concept, if you look at, so initially we had the processing with numbers only, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Then symbols, alphabets also came. Then linguistics based on the language. So natural language processing is part of it. Then I mean later on, expert system means, you know, that whatever, let's say I am a doctor, and I know how to treat a patient for a particular disease. So if I go to God's this thing, so my expertise is gone. If I die, my expertise is gone with me. So why not write a program here? If your nose is running and this thing is this and this is the color of your cold, these things, and everything, whatever is required, and then this is the medicine. So that is called expert system. Now the latest is that instrument should be made intelligent. What makes them intelligent? What makes a human being intelligent? And a brain. It's a brain. It is a decision making. And animals also do decision making to a certain extent, of course, but they do it for their food and very primitive things, no? And a limited extent. They cannot carry out any calculation. 2 into 3 नहीं कर सकता है law enjoy. ठीक है? So artificial neural networks can do all sorts of numeric symbol, all these processing, as well as based on its environment, it can take the decision also. Like just like our brain does. If our brain is, whenever our brain is fed with sensory information, then what happens is the neurons are fired and the information is passed on to the next neuron. How brain does, nobody knows what is done inside the brain. Nobody has so far analyzed the functioning, has been able to analyze the functioning of neurons. How they process the information at any particular point of time. There are some 10 raised to the power 15 neurons in our brain, and they are interconnected in a very difficult manner. 10 raised to the power 18 interconnections within the brain, all those things. At one point of time, for every job, certain numbers of neurons are fired, and you never know, one neuron is here, another neuron is here, how they give the information from one to another. But people have been trying, no problems. One day it will be, I mean, capability is increasing for neural networks also. So what we mean to say, that it is the concept of learning which is existing in human beings, which makes them intelligent. आप decision लेते हो, you take the decision based on your learning. For example, again I'll give you an example. You can see this is a fan.
है ना? When you were child, probably somebody, might be mother, father, somebody told you कि भाई, whenever there is a central part and whenever there are three blades, thing which rotates, probably it is the fan, है ना? Now you saw a fan of a different color, fan of a different make, है ना? Maybe, है ना? And there was of course a slight difference from one fan to other, है ना? Of different make and different distinct blade thickness, ये वो. But then even if your brain tells you that it's a fan, even the fan which is hired for marriages, which makes more noise than functioning, है ना? शोर ज्यादा मचाता है शादियों में, and it doesn't give any air, है ना? Even our brain is able to call it a fan, although it contains only probably 2 blades only, है ना? 3 भी नहीं होते, 2 ही blades होते. In fact, your brain has learnt by examples. Man learns by example. That is the beauty. That is called artificial neural network. You know, we are trying to mimic the brain. We are trying to mimic the brain, है ना? And we train that circuit using examples of different kinds, telling it that this is the output corresponding to this input, this is the output corresponding to everything has got a feature. Whenever I say there are 3 blades, it's a feature, है ना? There is a rotating part or a motor in between, feature, है ना? So if you know that these are the features of a fan, and every time you tell कि 2 blades होंगे, fan होगा, ये टेबल फैन होगा, पेडेस्टल फैन होगा, and then fan, है ना? खड़ा भी हो सकता है, पड़ा भी हो सकता है, this way, that way. Conclusion is fan. Your brain has learned it by examples, है ना? वही है. बच्चा, whenever there is a child and he learns all the things by example, है ना? How he learns walking? He learns by seeing others walk. कि others are walking, that means this, है ना? This is learning. Learning can be on different types, यार, है ना? This is not only of one type. So that is the neural network. You know, कि there is a circuit. We will show it different examples. We will tell the output, and once it has learned it, then if you present it with a unknown input, even, है ना, when you present it with a known input, it will be able to give you the output one day, है ना? So that is. So that means now the scenario is like this, that there are certain sensors, and those sensors are smart sensor. I'll just define what are smart sensors, है ना? Then there are real-time software, है ना? When you combine these two, है ना, that means you have the required hardware, and that hardware is having the software embedded. We call it embedded system. That is for a particular application. That is dedicated. Always an embedded system is dedicated to a particular application. You cannot call a computer as an embedded system, you know. Computer is not an embedded system. Although computer has hardware as well as software, it's not an embedded system. It is not for particular application. It has not been, cast that way. The hardware and software have not been tailor-made for a particular application. Therefore, it is not an embedded system. ठीक है ना? But your mobile is, है ना? Mobile का antenna, mobile के signal processing, है ना? Apart from that, all calculations, so many calculations take place within the chip of the mobile, not only the this thing. And so these embedded system, whenever the embedded systems are small, we have there only the wired connectivity is there. One component is connected to the other component by a wire. But whenever the system is large, it's a large system, then maybe that you have to go for wireless. You know, let's say nowadays we are talking of body area networks. To the patient, no, several electrodes or transducers will be fitted, है ना? ECG के लिए, EEG के लिए, हैं? Heart rate, temperature, all these are different parameters of the body, no? And let us say these variables have to be transmitted to a central room in the hospital.
So there you cannot have the wired connectivity. You have to have wireless transmission from the sensor to the central host room. You know? So it depends on the type of system. You know. Now, as I said, I'll define the smart sensors. What are smart sensors? Basically, this is the definition. It's a transducer or actuator. You know, don't think that it is only a, sensing device. You know, motor. For example, you take motor. Motor basically is not a sensor as such. It doesn't fall into the, but it falls into the category of an actuator. And it actuates something. But how does it actuate? है ना? Motor के armature में you make the current flow, then only it moves. है ना? That means rotational motion को sense कर रही है ना एक तरह से. It is sensing the rotational motion of the armature. So that way, any actuator is sort of a sensor also. Actuator actuate तभी होगा ना जब कुछ sense करेगा. So a smart sensor is a transducer that provides functions beyond what is necessary to generate a correct representation of the sensing variable. It's not, don't think that a temperature, pressure, or whatever variable, whichever you want to sense, only if you sense that will become a smart sensor. A smart sensor provides you much more than the sensed output. What is much more than? Now let us see what is that. But that means sensed output ke corresponding to output will be there. A sensed variable corresponding, there will be output. There is no doubt about it. But more than that, it gives you something else. Let us see. Basically, smart sensors are meant for working in a networked environment. Always remember. Whenever we say smart, basically it means that it should be able to communicate the value of the variable. Whatever it is sensing, it should be able to send that value of that variable at a distant place. That means it has to have the communication capability. And when you say that communication capability, that means there is some sensor network basically, where it is giving, any sensor is sending the output to either another sensor or to a host computer. That's the idea. So smart sensor idea has evolved from the sensor networks idea, basically. Like these are some features. It has to have low cost. It must consume low power. You know why? It's very simple. It is given here. Lifetime of a sensor network, basically it depends on the power consumption of the nodes. Let's say, just take an example. You want to sense the fire in a forest. Forest fires are very common. Entire forest vanishes when there is a fire, it's so dangerous. We want to sense, let us say, fire in a forest. What will you do? You will mount the fire sensors at various places. In a given area, of course. Entire forest doesn't mean acres and acres of the whole world. Whatever. Let's say 1 kilometer by 1 kilometer. That area is to be covered. So all the bushes, etc., whatever, even the ground grass, that you have to see where you have to place the sensors. Nobody can generalize the things. But if any sensor shows some output, that means fire is going to break out near that. Immediately that will be communicated to the other sensor. Now, or the host computer, whatever. Whatever, actually what happens, you must have heard or read that these sensor networks, they are basically having a node head. There is a cluster of sensors and there is a head. So they all provide information to the sensor, the nodal head, and the nodal head further transmits it to the computer where it will be processed. This is a normal thing. And there are several clusters, and each cluster will be having a nodal head. Those nodal heads are connected to the host computer. So what I am saying is, these fire sensors, what is the method of
giving power to them. After all, they are electronic things. भाई अगर communication has to take place, तो communication अभी तो electronic है ना. So that means they have to have some power source यार. अभी तो बैटरी है. It's only the battery. You cannot provide यार 220 volt AC to the forest, in the forest. है ना? Cannot imagine. It's not necessary that a power line will be going from there. है ना? In all probability, अरे urban area में तो है नहीं power line. How it will be in the forest area? So that means they have to have battery. They have to work in such environments. So power consumption has to be kept at a minimum. When a sensor is not working, it should go into the sleep mode. It should not consume power. And as soon as it senses something, it should become active. So this is the general characteristics of sensor networks. So lifetime of the sensor network mainly depends on the power consumption of the sensor nodes. And focus is all the research all throughout the world is going on to have minimum power consumption. है ना, उसी के लिए सारे एल्गोरिथम जो हैं दे आर बीइंग डिजाइन किस तरह से मैनेज करें, है ना, कम्युनिकेशन को कि मिनिमम पावर इज कंज्यूम्ड, है ना, सारी कैलकुलेशन उसकी है इस टाइम, ठीक है ना. और पावर कंजम्पशन इज टोपोलॉजी बेस, हाउ यू प्लेस द सेंसर्स, हाउ यू मेक देम कम्युनिकेट, उस पे सारा खेल है ये, ठीक है ना. सो फीचर्स आर बेसिकली एनी स्मार्ट सेंसर इज सेल्फ डायग्नोस्टिक, सेल्फ आइडेंटिफाइड, ठीक है ना. सेल्फ डायग्नोस्टिक का मतलब यही है जैसे व्हेन यू बूट द कंप्यूटर तो वो सेल्फ डायग्नोस्टिक करता है कि नहीं, रैम इज ओके, दिस इज ओके, दैट इज ओके, ऑल दोस थिंग्स, सेल्फ डायग्नोस्टिक, है ना. कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी, एवरीथिंग इज फाइन. आउटपुट जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल एंड दैट इज इन द नॉर्मल इंजीनियरिंग यूनिट्स. You need not convert them. Then what is the smartness? If the sensor output has to be converted into some other units, then the human being is required. यार, what is sensor doing there? है ना? So standard engineering unit output, that is must. Time stamping. That means whatever data, whatever variable value is coming, it should be with time stamping. At this moment this was the data. At this moment पूरा data logging. फुल डेटा लॉगिंग विद टाइम, ठीक है ना. एंड देन सिग्नल प्रोसेसिंग, ये तो जरूरी है ही, ठीक है ना. जनरली दीज डिवाइसेस आर मल्टी चैनल, सिंगल चैनल नहीं होते, है ना. एंड देन देयर आर प्रोटोकॉल्स, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, डेटा स्टोरेज प्रोटोकॉल है, कंट्रोल जो स्कीम है उसका प्रोटोकॉल है. दे हैव टू फॉलो ए प्रोटोकॉल, ठीक है ना. ये सारी चीजें स्मार्ट सेंसर में होती हैं बेसिकली, लेकिन कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी है, मतलब बाकी तो चलो ठीक है ना. तो ये सब हो गया. ये वही एग्जांपल है भाई ह्यूमन बॉडी का, तो कोई खास बात नहीं है. यू हैव टू माउंट द सेंसर एंड देन, ये कार का एक एग्जांपल है. यू नो, कार को तुम कितना भी स्मार्ट बना लो, है ना, कोई एंड थोड़ी है है ना, एज फार एज योर इमेजिनेशन गोज. तो देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन एक्सेप्ट दैट टेम्परेचर सेंसिंग भी हो गई, ह्यूमिडिटी भी हो जाएगा, रूफ से वो भी हो जाएगा, हाउ मच हीट फ्लक्स इज कमिंग, हाउ मच लाइट फ्लक्स एटसेट्रा थ्रू द विंडोज, ये वो. इंजन का भी अगर तुम्हें करना है, दैट ऑयल का कंडीशन मॉनिटरिंग, है ना, कि व्हेन ऑयल इज टू बी चेंज्ड, तो व्हेनेवर फेरस पार्टिकल्स आर अप टू ए सर्टेन लेवल, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ फेरस पार्टिकल्स एज वेल एज नॉन फेरस, सबका ट्रिप वो है, मेजरमेंट है. इट्स नॉट डिफिकल्ट वेरी, है ना. ल्यूब ऑयल का एरोप्लेन में करते हैं, ठीक है ना, वहां पे होता है ये सब. बट कार इज ए स्मॉल थिंग ना, सो कॉस्ट विल इंक्रीज व्हेन इफ यू कीप ऑन एडिंग सेंसर्स, ठीक है ना. क्लाइमेट तो बहुत इजी चीज है, क्लाइमेट तो है ही, तभी मतलब ऑटोमेटिकली एसी ऑन हो जाए, ये हो जाए वो. सो दीज थिंग्स मेक द कार स्मार्ट. एंड what you need is all these sensors if you mount, definitely they must have communication capability. नहीं तो कैसे होगा? Who will take the decision? कोई सेंट्रल प्रोसेसर होगा कि नहीं होगा? तो बस वही है यार, कुछ नहीं है. मैं लच्छे मार रहा हूँ अभी तक, है ना. देखो ये तो मॉडल है, जनरल है कि हार्डवेयर में क्या होगा. हार्डवेयर वाइज देयर विल बी वन सेंसर, सिग्नल कंडीशनिंग, A to D कन्वर्शन, है ना. और उसके अलावा एप्लीकेशन एल्गोरिथम, दैट मींस व्हाटएवर एप्लीकेशन यू वांट इट टू डू. फॉरेस्ट फायर सेंसिंग है, मोबाइल फोन है तो उसका सॉफ्टवेयर होगा. यूजर इंटरफेस होना चाहिए भाई. अगर यूजर इंटरफेस नहीं होगा तो हाउ यूजर विल इंटरेक्ट. तुम की दबा के कितनी तो सेटिंग
करते हो डे एंड नाइट अपने मोबाइल की, तो दैट मीन्स यूजर इंटरफेस और यूजर फ्रेंडली, जितना यूजर फ्रेंडली होगा उतना अच्छा होगा, है ना। बाकी डेटा स्टोरेज होना ही है, सो मेनी नेम्स यू स्टोर ना इन द मोबाइल, तो ये स्मार्ट डिवाइस है। कम्युनिकेशन एंड यही है कि बस जो है ना, दिस बस एनी नेटवर्क जो लिखा है द लोअर मोस्ट थिंग, कि इट शुड बी एबल टू, जनरली IEEE 488 बस है या कौन सा प्रोटोकॉल है, मतलब कम्युनिकेशन जब हो जाएगा तो किसी, ये नहीं है कि तुम किसी भी जगह पे किसी भी उसके हिसाब से सिग्नल दोगे, दैट बस का हार्डवेयर भी उतना इंपॉर्टेंट है, कितने वायर्स होंगे बस में, RS-232 कम्युनिकेशन है या 3 वायर्स आर सफिशिएंट। अगर RS-232C कम्युनिकेशन विद तुम्हारा टेलीफोन लाइंस है तो वहां पे 7 वायर्स आर नीडेड, है ना, रिक्वेस्ट टू सेंड, क्लियर टू सेंड, दिस हैंडशेक सिग्नल्स, है ना। IEEE 488 है वो पैरेलल आर्किटेक्चर मांगता है, तो ये बस का आर्किटेक्चर विल डिपेंड ऑन द कम्युनिकेशन का आर्किटेक्चर, है ना। तो दैट मीन्स दीज 4 थिंग्स आर रिक्वायर्ड, सेंसिंग एंड सेल्फ टेस्टिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड फाइनली द इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ये 4 उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। सेंसर नेटवर्क्स, इफ यू कम टू सेंसर नेटवर्क्स, तो देखो सेंसर नेटवर्क की एग्जांपल्स अगर तुम देखो, ह्यूमन बॉडी इज एन एग्जांपल, रडार, ठीक है ना, रिमोट सेंसिंग, ठीक है ना, एंड माइक्रो फैब्रिकेशन लैब्स, है ना, ये एग्जांपल्स हैं इसकी सेंसर नेटवर्क यहाँ पे होना ही होना होता है, ठीक है ना। और बॉडी का की बात अगर मैं करूंगा तो बॉडी में देखो, यू सीइंग, दिस इज ए सेंसिंग, स्मेल इज ए सेंसिंग, टेस्ट सेंसिंग, ये सारे के सारे कहां सिग्नल जा रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग में कम्युनिकेशन हो रहा है भाई, इसका अपना कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ठीक है ना, बेस्ड ऑन दैट योर ब्रेन टेक्स द डिसीजन। ये तो पूरा लिखा नहीं है, अदरवाइज टच सेंसिंग है, इफ यू गिव योर हैंड इन हॉट वाटर या फायर या फर्नेस में, कैसे सेंसिंग हो जाती है, कैसे ब्रेन वो कहता है तुमको कि यू शुड रिट्रैक्ट योर हैंड। तो ये एग्जांपल्स हैं। बाकी ये है सेंसर नेटवर्क के एट्रीब्यूट्स जो है ना, दिस द स्पेसिफिकेशन, मतलब एक तरह से इफ यू वांट टू स्पेसिफाई ए सेंसर नेटवर्क, व्हाट यू हैव टू टेल टू द पर्सन। मार्केट में जाओगे तो क्या बताओगे, कैसा सेंसर नेटवर्क चाहिए, साइज, साइज में मेम्स बेस्ड भी हो सकता है या रडार और सैटेलाइट बेस्ड हो सकती है साइज ऑफ द सेंसर नेटवर्क। नंबर कितने वो चाहिए तुम्हें नोड्स, पैसिव चाहिए कि एक्टिव चाहिए, है ना। होमोजीनियस, होमोजीनियस मींस एक ही तरह के, हेट्रोजेनियस डिफरेंट कैपेबिलिटीज वाले, ठीक है ना। डेंस या स्पार्स मतलब डेंसिटी, फिक्स्ड चाहिए नोड्स या एडहॉक, मतलब तुम चेंज भी कर सकते हो मोबाइल टाइप, ठीक है ना। ये डायनेमिक्स उनकी। बिनाइन मींस फैक्ट्री, बिनाइन मींस नॉर्मल गुड एनवायरनमेंट, इज कॉल्ड बिनाइन एनवायरनमेंट। फैक्ट्री फ्लोर के पे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन फील्ड में देखो, फील्ड में अगर तुम्हें सेंसर यू हैव टू डिप्लॉय फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हीकल ऑफ द एनिमी या आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए गन, कोई भी, तो देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डिप्लॉय देयर, है ना। तो मतलब फैक्ट्री फ्लोर पर इज अंडर योर कंट्रोल, वार का जो जोन है दैट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, हाउ विल यू, तो दैट मींस ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट क्या रखना है उसका। और वहां पे फैक्ट्री फ्लोर में देयर इज नो रेन, नो सन, नथिंग। फील्ड में बारिश भी हो रही होगी, धूप भी पड़ रही होगी, और सब कुछ हो रहा होगा, ठीक है ना। कम्युनिकेशन किस टाइप का चाहिए, वायर या वायरलेस, ठीक है ना, बैंडविड्थ सिस्टम की, ठीक है ना, एनर्जी कितनी अवेलेबल, कितने बैटरीज तुम लगा सकते हो, देख लो। मतलब ये स्पेसिफिकेशन है जनरल एक वायरलेस सेंसर, ये एक सेंसर नेटवर्क के। ये तो ऐसे दिखा रखा है कि डिफरेंट वेरिएबल्स को सेंस करने के लिए ये, मतलब दे आर कैपेबल टू बी इंटीग्रेटेड इन ए सेंसर नेटवर्क, इस टाइप के बनते हैं मतलब सेंसर्स। ये सब तो ऐसे ही है। ये देखो, ये जस्ट दिस थिंग की एज टाइम प्रोग्रेस्ड, हाउ द सेंसर नेटवर्क टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस्ड, ठीक है ना। यस्टरडे क्या था, टुडे क्या है, टुमारो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेट, आर्किटेक्चर, टोपोलॉजी, पावर सप्लाई, डिप्लॉयमेंट, ये वो दिखा कंपैरिजन है कि मतलब टेक्नोलॉजी किस तरह से देखो फॉरवर्ड जा रही है। साइज वाइज देखो तो प्रीवियस सेंसर्स यूज्ड टू बी लाइक इतना बड़ा होता था जितना शू होता है। टुमारो हम क्या चाहते हैं,
इतना डस्ट पार्टिकल जितना हो, स्पेशली एनिमी के लिए अगर शू जितना रखोगे तो यार दूध से ही साला दिख जाएगा, है ना। हम डस्ट जितना चाहते हैं कि सेंस भी करे और दिखे भी ना, ठीक है ना। लोग तो उसको यूज कर रहे हैं यार, हनी बीज को पे सेंसर लगा के, मतलब अमेरिका वगैरह में तो उस पर रिसर्च हो रही है कि हनी बीज वगैरह नहीं होती, अब दूसरी बीज भी होती हैं, ठीक है ना, तो उनमें ट्रांसमीटर फिट कर दिया। अब हनी बी उड़ अपने आप जाएगी, नोबडी कैन सस्पेक्ट, है ना, एंड इट विल ट्रांसमिट द सिग्नल। उसकी आई तक को यूज कर लिया कि भाई वो भी तो देखेगी ना, तो दैट मीन्स वो एज कैमरा उस सिग्नल को टैप करके उसको ट्रांसमिट कर रहा है, तो एनिमी का सभी पता लग गया। तो वेट आर्किटेक्चर लाइक दैट ना, ये तो डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चर हैं यार, तुम्हें पता होगा, नेटवर्क आर्किटेक्चर्स हैं ये तो, और ये इनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, इथरनेट वगैरह तो सुना होगा ना तुमने, है ना, क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल, पीयर टू पीयर नेटवर्किंग, ये IEEE 802.11 वायरलेस लैन बोलते हैं इसको, ब्लूटूथ पता ही है यार सबको, ठीक है ना। तो ये नेटवर्क के मोड्स हैं, ये वही चीज है कि दीज आर द थिंग्स विच आर डिजायरेबल, है ना, होना चाहिए। तो मैं तुम्हें आप बताता हूँ पहले आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क दैट मेक्स द इंस्ट्रूमेंट इंटेलिजेंट। देखो, दिस इज अ बायोलॉजिकल न्यूरॉन, क्योंकि इट हैज बीन मॉडल्ड आफ्टर बायोलॉजिकल न्यूरॉन। आर्टिफिशियल न्यूरॉन इज लाइक व्हाट गॉड हैज गिवन अस, है ना, फ्रॉम देयर द इंस्पिरेशन केम, मोटिवेशन। देखो, इफ यू लुक एट अ बायोलॉजिकल न्यूरॉन ऑफ द ब्रेन, व्हाट इट कंटेन्स, इट इज जस्ट लाइक अदर सेल्स, मतलब जैसा कोई सेल होता है ना बॉडी के अंदर, न्यूरॉन भी एक सेल है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट्स ए सेल, बॉडी सेल, है ना। तो बॉडी सेल जब होते हैं उनका न्यूक्लियस तो होता ही होता है ना, एवरी सेल हैज ए न्यूक्लियस यार दुनिया में, बॉडी में, तो न्यूक्लियस हो गया। और अदर टर्मिनोलॉजी विच इज स्पेसिफिक टू दिस न्यूरॉन सेल, डेंड्राइट्स। देखो, डेंड्राइट्स मीन्स टू दिस सेल वेरियस फाइबर्स आर सॉर्ट ऑफ कमिंग आउट, है ना, उनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। एक्चुअली दिस डेंड्राइट्स टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रीवियस न्यूरॉन। ये जो डेंड्राइट है ना, ये इससे पहले का जो न्यूरॉन होगा ना, उससे इंफॉर्मेशन पिकअप कर रहा है ना, और आगे पास ऑन कर रहा है, अभी आगे के डेंड्राइट तक आते हैं। देखो, तो डेंड्राइट पिकअप द इंफॉर्मेशन एंड दिस पर्टिकुलर सेल, दिस इज द प्रोसेसिंग यूनिट। सेल के अंदर क्या होता है वो कोई जिंदगी में बता नहीं सकता तुमको, इलेक्ट्रोकेमिकली कुछ होता रहता है, नोबडी नोस व्हाट हैपेंस इनसाइड दैट, लेकिन सारे फंक्शन हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन, समेशन, ई रेज़ टू द पावर, ये वो दुनिया भर का लॉग शॉग सब हो जाते हैं, ठीक है ना, विद इन दिस सेल। सेल से जो इंफॉर्मेशन विच इज कमिंग आउट, दैट इज कॉल्ड, दिस इज थ्रू एक्सॉन। एक्सॉन हिलक मीन्स, एक्सॉन हिलक इज द जॉइंट ऑफ दिस एक्सॉन। एक्सॉन इज ए लॉन्ग थिंग, है ना, लॉन्ग फाइबर एंड थिक वन, उसका वो जॉइंट जो है ना सेल के साथ में, वो एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं उसको। तो जॉइंट में कोई खास बात नहीं है, द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल पासेस थ्रू एक्सॉन, मतलब आउटपुट एक्सॉन के थ्रू है, इनपुट डेंड्राइट्स के थ्रू है, आउटपुट एक्सॉन के थ्रू है। ये एक्सॉन आगे जाके डिवाइड हो जाता है यार, ऐसे बड़ी बायोलॉजिकल चीजें चलती रहती हैं, ठीक है ना। तो ये डिवाइड हो गया, देखो, डिवाइड होके ये टर्मिनल बटन्स लिखा है ना, तो ये टर्मिनल बटन्स आ जाते हैं। टर्मिनल बटन के साथ में नेक्स्ट का डेंड्राइट जो है वो कनेक्टेड होगा, लेकिन यहां पे भगवान ने क्या किया, गॉड हैज चेंज्ड रियली फ्रॉम द डेंड्राइट टू दिस टर्मिनल बटन, द इंफॉर्मेशन passes इलेक्ट्रिकली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, पूरा इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिशन है, रियली इलेक्ट्रॉन्स आयंस का फ्लो हो रहा है ना, पोटेशियम सोडियम आयंस वगैरह वगैरह, क्लोराइड आयंस मूव कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल यार। बट टर्मिनल बटन से जो नेक्स्ट न्यूरॉन है, वो गैप जो है दैट इज माइक्रोन का गैप होता है टू द नेक्स्ट डेंड्राइट, है ना। पहले वाले का आउटपुट और दूसरे वाले का इनपुट, मतलब डेंड्राइट, उसके अंदर जो माइक्रोन का गैप है,
वहां सारा का सारा काम जो है इलेक्ट्रोकेमिकली हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकली से भी ज्यादा केमिकली हो रहा है। और यहीं पे मार खाते हैं हम कि इसीलिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हम बना नहीं पाए आज तक, कि इलेक्ट्रिकल के बीच में, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के बीच में यार ये केमिकल ट्रांसमिशन जो है ना, ये ओनली गॉड कुड डू इट, एंड व्हाई ही चोज टू डू इट दैट इज आल्सो अननोन, है ना। पूरा इलेक्ट्रिकल हो जाता तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम, है ना। लेकिन आज तक किसी ने उससे पूछा नहीं, उसने बताया नहीं। ठीक है, तो देयर द ये है। तो वी वांट टू मिमिक दिस, है ना। तो हाउ आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स आर मॉडल, भाई हमें अब करना है तो हमें तो सर्किट बनाना पड़ेगा इसके लिए, है ना। तो दैट इज कॉल्ड द मॉडल। तो ये तो वो है, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी होती है ना, मतलब पेट, उसका, उससे न्यूरॉन्स का की फोटो है, ये एक तरह से समझ लो कि ब्रेन में न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं, देख लो एक्चुअल न्यूरॉन्स। तो ये तो जस्ट एक है कि अब इससे बताओ कि यार कौन सा न्यूरॉन था, कहाँ पे किसको इंफॉर्मेशन दे रहा है, कैन यू फाइंड आउट? नहीं पता, कुछ पता नहीं है, जमघट है अंदर एक, है ना। एंड स्टिल द ब्रेन इज वर्किंग, इतना कॉम्प्लिकेटेड पता नहीं गुच्छा बना हुआ है, एंड इवन देन थिंग्स आर वर्किंग। मॉडल, अगर मॉडल की बात करते हो तो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ये जो इन एरोज हैं, जो इनपुट एरोज, इफ यू लुक एट, तो ये इनपुट एरोज से तुम इंफॉर्मेशन इज कमिंग, अच्छा जी इंफॉर्मेशन आ गई, है ना। और ये समेशन का देख रहे हो, दैट मीन्स व्हाट विल हैपन इज दैट these informations will get multiplied by certain numbers। ये जो WI1, WI2, WI3 वगैरह देख रहे हो, है ना, these are called the weights। That means what our brain does, our brain does not attach equal importance to all the sensory information। ऐसा नहीं है, तुम ये मत सोचना कभी भी कि इस टाइम मैं लाइट भी सेंस कर रहा हूं, इस टाइम मैं टेम्परेचर भी सेंस कर रहा हूं, इस टाइम बहुत कुछ सेंस कर रहा हूं, मेरी आईज देख भी रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है, ब्रेन में इंफॉर्मेशन जा रही है ना। डू यू थिंक ऑल द इंफॉर्मेशन इज गिविंग बीइंग गिवन द सेम इंपॉर्टेंस? नो। ठीक है ना। पता नहीं ब्रेन क्या करता है, जिस चीज को तुम करना चाहते हो उसको सडनली इंपॉर्टेंस उसकी इंक्रीज कर देता है। तुम्हें गर्मी लग रही है ना, तुम्हें गर्मी लग रही है, अगर तुम्हें इफ यू आर फीलिंग दिस थिंग हॉट, तो टेम्परेचर का जो सेंसर है ना, उसको एकदम से मतलब वो कर देगा, हाँ, उसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो जाएगी तेजी से और ज्यादा इंपॉर्टेंस के साथ में। एवर चेंजिंग डायनेमिक, कितना ज्यादा डायनेमिक है। उस टाइम तुम्हारे सामने से व्हीकल आ रही होगी, अगर तुम गर्मी फील कर रहे हो तो अगर दैट इज इंपॉर्टेंट कि यू आर गोइंग टू लेट्स से हैव एन एक्सीडेंट, तो दैट मींस वो इंफॉर्मेशन जो है दैट विल टेक प्रेसिडेंस ओवर। उस टाइम चाहे तुम्हारे पसीने हो रहे हो, यू विल नॉट, तुम्हारा ब्रेन उधर नहीं करेगा काम, पहले वो करेगा यार एक्सीडेंट से बचना है है ना, ऐसी तैसी चाहे पसीने में नहा गए हो, तो ब्रेन नोस कि किस इंफॉर्मेशन को कितना इंपॉर्टेंस अटैच करना है। तो उसको अकाउंट फॉर करने के लिए वी हैव अटैच्ड दीज वेट्स, मल्टीप्लाइंग वेट्स, WI1, ये ith न्यूरॉन शो किया, मतलब ith मींस इन जनरल, है ना। तो WI1 मींस जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है कहीं से आ रही है उसका वेट, WI2, दीज आर द वेट्स। तो दैट मींस हो गए वेट्स, उसके बाद में उन सब जो आया उसका समेशन हो गया। मान लो AI1 इज इंफॉर्मेशन, AI1, AI2, AI3, तो AI1 इंटू WI1, हाँ ये नीचे लिखा है देखो, W11 इंटू X1 प्लस W12 इंटू X2 नीचे है ना, वो समझ लो X1, X2, X3 ये इनपुट है ना, तो मान लो उसको एक को इससे मल्टीप्लाई, दूसरा ऐसे, दे गेट समड अप। तो एक समड अप का मतलब टोटल एक बन गया नंबर, है ना। उसके बाद ये F लिखा है देखो, F का मतलब उसके ऊपर एक फंक्शन जो है वो ऑपरेट करता है, और वो फंक्शन जो है बहुत नॉन लीनियर होता है, दैट फंक्शन इज हाईली नॉन लीनियर, ठीक है ना। दैट मींस उस जो वैल्यू को, जो समेशन होके वैल्यू, जो समेशन होके वैल्यू आती है ना, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द टर्मिनोलॉजी। एक्टिवेशन वैल्यू मींस आफ्टर समेशन वॉट एवर इज अवेलेबल, उस एक्टिवेशन वैल्यू को मैप करता है ये एक दूसरे नंबर पे,
वो जो रिलेशनशिप है दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन फंक्शन एफ। ये मैपिंग जो है ना, कैसे मैप करता है तो वही बात है कि पता नहीं है, हमने तो एक मान लिया है। हाइपर ह्यूमन बीइंग्स ना जनरली, कई लोगों ने क्या किया है, एवरीबडी हैज सजेस्टेड हिज ओन मॉडल ऑफ द न्यूरॉन। अगर तुम न्यूरल नेटवर्क पे जाओ तो बहुत उसमें लाइन लगी हुई है, एवरी मेनी पर्सन हैव सजेस्टेड। किसी ने उसको स्ट्रेट लाइन से अज्यूम किया है इस फंक्शन को लीनियर, है ना, किसी ने नॉन लीनियरिटी ली है तो किस टाइप की ली है, किसी ने सिग्मोइड फंक्शन ले लिया। सिग्मोइड फंक्शन मींस 1/1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, उसको सिग्मोइड फंक्शन बोलते हैं। 1/1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, मतलब डिनोमिनेटर में। तो अब कितना नॉन लीनियर हो गया देखो, एक्स को ये इस पे मैप करता है, इस वैल्यू पे, है ना। तो दिस इज व्हाट इज, तो सबका अपना अपना हिसाब है। एवरीबॉडी हैज प्रपोज्ड ए न्यूरॉन कि ब्रेन ऐसे काम करता होगा, ऐसे काम करता होगा, करता उनमें से किसी तरह नहीं है। हो क्या रहा है सर, मतलब 3 इंफॉर्मेशन आई, सम अप तीन क्या 50 इंफॉर्मेशन आई, इसके इसमें मान लीजिए 3 आई। हाँ मान लो 3 आई, हाँ उनका एक फंक्शन बना, उनका एक टोटल बना, टोटल को एक फंक्शन से हमने दूसरी जगह ले गए कि मान लो उनकी वैल्यू 2 आई, तो इस 2 को हमने करके 75 बना दिया, लेट अस से, है ना। 3 को हम कुछ बना देंगे 125, नॉन लीनियर सा वे में, लीनियर नहीं है कि अगर 2 को हम 75 पे मैप कर रहे हैं तो 3 को हम 100 पे करें, या 4 को हम 125 पे करें, 5 को 150, ना ना ना, ऐसा नहीं है कुछ भी, पता नहीं कहाँ का कहाँ करते हैं हम, ठीक है ना। हाँ, फंक्शनल रिलेशनशिप है ये तो एक, है ना। तो वो एक वैल्यू आ गई, वो दैट इज कॉल्ड द आउटपुट ऑफ द न्यूरॉन विच इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। नेक्स्ट न्यूरॉन फिर एक उसके लिए एक नंबर बन गया, उसकी अपनी सेंसरी इंफॉर्मेशन और होगी, एक तो ये होगी जो प्रीवियस न्यूरॉन था, बाकी और वो ले रहा होगा, वो पता नहीं, वो ऐसे घालमेल वो करेगा। दिस इज कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क, ठीक है ना। तो ये देखो, ये इसको समझो न्यूरल नेटवर्क को। दिस फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड द इनपुट लेयर, रेड वन, है ना। तो इस पे इनपुट आ रहा है और जो भी है चलो, है ना, वेट्स के साथ मल्टीप्लाई, और अब वेट्स दिखाए नहीं है यहाँ पे, यहाँ तो इंटरकनेक्शन है, एवरी इंटरकनेक्शन इज हैविंग ए वेट वैल्यू। इनपुट पे भी हो सकता है, मतलब वेट अटैच नहीं भी हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है यार, कोई फिक्स थोड़ा ही है ना। लेकिन ये देख लो कि रेड से जो ये जो है ना स्काई ब्लू वाले, ये इंटरकनेक्शंस है, बट एंड एवरी इंटरकनेक्शन विल हैव डेफिनेटली हैव वेट। जो बिटवीन द न्यूरॉन्स होते हैं ना, उनमें तो वेट होगा ही होगा, वही तो लर्निंग प्रोसीजर है। अभी लर्निंग बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। पहली बात, आप इंटरकनेक्शंस देख लो, समझ लो कि एवरी न्यूरॉन इज कनेक्टेड टू एवरी नेक्स्ट लेयर का न्यूरॉन, एवरी न्यूरॉन ऑन इन वन लेयर इज कनेक्टेड टू एवरी न्यूरॉन ऑफ द नेक्स्ट लेयर। ये बीच की जो है हिडन लेयर्स बोलते हैं, हमें दिखाई नहीं ना देती है, यूजर से इनका कोई मतलब नहीं है ना। यूजर को तो इनपुट लेयर है, आउटपुट लेयर है यूजर के लिए, ठीक है ना। तो इनपुट लेयर्स पे आप इनपुट यानी कि एट्रीब्यूट्स दोगे किसी, वही फैन वाली बात है, एट्रीब्यूट, है ना, कि 3 ब्लेड्स है, ये कलर है, वो कलर भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और आउटपुट मींस तुम आउटपुट डिफाइन कर रहे हो कि इट्स एन ओरिएंट फैन, लेट्स से दिस इज वन क्लास ऑफ फैन, इट्स ए सीलिंग फैन, लेट्स से, ओके, ओरिएंट भी मत दो, सीलिंग फैन। कुछ और शो किया, इट्स ए टेबल फैन, उसके लिए तुम कुछ और एट्रीब्यूट दोगे, लेंथ फैन तो उसका कुछ, या पेडेस्टल फैन, वो तो उसके हिसाब से ही होगा ना, वो उसको क्लासिफाई। उसके बाद में तुम एक बार जब लर्न कर गया ना, ये तुमने लर्न करवा दिया इसको बाय गिविंग डिफरेंट इनपुट्स एंड बाय टेलिंग द डिफरेंट आउटपुट्स, यू हैव टू टेल द आउटपुट, देन एट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम इट विल लर्न, देन ये कह देगा नाउ आई एम रेडी। उसके बाद में तुम कोई भी इनपुट इसको दोगे ना, आउटपुट निकाल के दे देगा। दिस इज द ब्यूटी। न्यूरल नेटवर्क्स जो इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होते हैं ना, यू नो, दे आर ट्रेन्ड फॉर ईयर्स टुगेदर। अभी मैं एग्जाम्पल आपको एक लूंगा, रनिंग एग्जाम्पल, मॉनिटरिंग द डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया। मॉनिटरिंग द डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया, व्हेन यू गो टू द ऑपरेशन थिएटर, तो आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है कि नहीं? जब वो एनेस्थीसिया दिया जाता है तो हाउ मच इज द लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस? ये मत समझो कि एनेस्थीसिया ऐसे तुक्के से कितना भी दे दिया, नहीं 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 नहीं,
अगर एनेस्थीसिया का लेवल ज्यादा हो गया ना तो आप कोमा में चले जाओगे, और एनेस्थीसिया का लेवल अगर कम रह गया ना तो फिर भगवान जाने, हो सकता है कि ऑपरेशन टेबल से उठ के भाग जाओ। है ना, एनेस्थीसिया का लेवल हैज टू बी गिवन, है ना। वो डॉक्टर अभी एक्सपीरियंस से करता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस में गो रॉन्ग, है ना। आफ्टर ऑल एट प्रेजेंट वॉट एवर इज डन इज बेस्ड ऑन योर body weight and your age and illness and gender, etc. There are some things which doctor looks at, but the experience may go wrong. ऐसा हो सकता है, जिंदगी में हमेशा ही करेक्ट तो नहीं होता, है ना। डॉक्टर भी लोगों को मरते ही हैं लोग, है ना, ऑपरेशन टेबल पे, ठीक है ना। तो आइडिया ये वो तो उसके लिए न्यूरल नेटवर्क ट्रेन किया जिस कंपनी ने वो डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया मॉनिटर बनाया ना, हमने ही बनाया है। एक और कंपनी है वर्ल्ड में जिसने बनाया एनेस्थीसिया डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया मॉनिटर, तो दे ट्रेंड इट फॉर 15 years, देन द प्रोडक्ट वाज अनाउंस्ड। न्यूरल नेटवर्क बेस्ड बनाया उन्होंने, ठीक है ना। तो न्यूरल नेटवर्क के लिए है मैसिव डेटा इज रिक्वायर्ड, मैसिव। वही है कि फैन के लिए तो मैं ओरिएंट का फैन, उषा के फैन, खेतान के फैन, ये पेडेस्टल फैंस ये दिखाने पड़ेंगे, तब उसको समझ में, तब वो परफेक्ट हो जाएगा। मतलब देयर इज समथिंग कॉल्ड परफेक्शन। 4 फैन दिखा दोगे तो वो ठीक है, इट मे बी एबल टू प्रिडिक्ट, लेकिन अगर उसको 400 फैन दिखा दो इनपुट पे स्पेसिफाई करोगे, देन इट विल बी डेफिनेटली गिविंग द करेक्ट आउटपुट, दैट 100% एक्यूरेसी वो एक पर्टिकुलर उसके बाद ही आती है ना। वही वाली बात है। ये तो बच्चा जितने और लोगों को, बड़े लोगों को या दूसरे बच्चों को चलता हुआ देखेगा, उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल उसका ज्यादा हो जाएगा कि यार 2 पैरों से जिंदगी में चला जाता है। जब तक नहीं चलता, नहीं देखता, तब तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। फिजिकली उसको पता है, तुमने पढ़ा दिया किसी को कि ऐसा ऐसा होता है, तुमने पढ़ा दिया मोटर का पूरा प्रिंसिपल पढ़ा दिया, अरे मोटर तो दिखाई नहीं जिंदगी में होती क्या है। तो क्या कॉन्फिडेंस आएगा उसको, ठीक है ना। तो वो वाली बात है। ये डिफरेंट यार टोपोलॉजीज हैं, है ना। न्यूरल ऐसा नहीं है कि न्यूरल नेटवर्क कैन बी कनेक्टेड टू अदर, मतलब कि न्यूरॉन्स, नेक्स्ट लेयर का न्यूरॉन्स इन ओनली वन वे। ना 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 ना, अरे यार सेल्फ फीडबैक हो सकता है, अपने आप को ही फीडबैक दे रहा है, अपना आउटपुट उसका अपने को ही इनपुट बन गया, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, है ना। वो भी लर्निंग का एक तरीका है भाई, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का एक मेथड है वो भी। तुम अपने से ही जिंदगी में क्यों नहीं सीखते। है ना, अपनी गलतियों से ही सीखो, सबसे अच्छा है वो। तो ये इस टाइप की चीजें है, मतलब कि भाई जो भी तुम सोच सकते हो यार कि इस तरह से कनेक्शन। सो unsupervised learning means that you are not able to tell what the inputs are and corresponding to that what outputs are, because might be that it is too confusing that you cannot probably tell the output confidently that this is the output corresponding to this input. In that case, you present the data to the neural network, and neural network by itself will find out what features define the input, what is there in the input which makes one input different from the other, and correspondingly therefore output is different. So that is feature identification in the input data, that is also carried out by the neural network itself. आपको फीचर नहीं बताने, you don't have to tell the features, है ना, you have to just give the input as it is without features. वो सिग्नल as it is present कर दो, features it will find out, output it will define by itself. That's called unsupervised. It's very difficult because that you have to write the program of the neural network in such a manner, no? Okay, what makes it different from other? So उसके में पूरा डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, आप मैथमेटिक्स बहुत आ जाएगा ना, कि हाउ द थिंग्स इन वन ग्रुप आर डिफरेंट फ्रॉम द थिंग्स ऑफ द अदर ग्रुप, है ना। व्हाट इज द, आई मीन एनालिसिस, पूरा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड जितना भी है सब कुछ उसके अंदर फिर घुसाना पड़ेगा, है ना, बिकॉज तुम तो बता नहीं रहे, यू आर आस्किंग द सिस्टम टू एनालाइज इट, तो दैट मीन्स तो एनालाइज सिस्टम तभी करेगा ना व्हेन यू इनकॉर्पोरेट दिस थिंग, कि भाई कुछ करो इस तरह से करके निकाल लो अपने आप। वो सॉफ्टवेयर बहुत डिफिकल्ट होते हैं सुपरवाइज लर्निंग के, मैंने देखे नहीं अभी तक कभी भी ऐसे। रीइंफोर्स्ड लर्निंग इज वन थिंग। रीइंफोर्स्ड लर्निंग का मतलब ये है कि
मान लो सिस्टम को तुमने इनपुट दे दिए, सिस्टम को आउटपुट भी प्रोवाइड कर दिया, आउटपुट इज ऑल्सो नोन, एंड देन यू आर ओनली टेलिंग दैट वेदर द आउटपुट इज करेक्ट और नॉट। लर्निंग का मेथड सिर्फ इतना, मतलब कंप्लीट इनपुट एंड आउटपुट आर नॉट बीइंग पेयर्ड, ठीक है ना, ओनली वेदर द आउटपुट इज राइट और नॉट, दैट इज बीइंग टोल्ड टू द न्यूरल नेटवर्क, नथिंग एल्स, ठीक है ना। मतलब न्यूरल नेटवर्क उस टाइम जो है वर्क कर रहा है, और तुम जो है क्रिटिक की तरह से एक्ट कर रहे हो। यू आर नॉट लाइक ए टीचर। सुपरवाइज लर्निंग में यू आर ए टीचर, है ना। हियर यू आर ए क्रिटिक, कि तू ये ठीक नहीं कर रहा, या तू ठीक कर रहा है, हाँ ठीक है ना, तू बंदा बन जा, तू ठीक नहीं कर रहा, ओनली दिस थिंग इज बीइंग टोल्ड, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं इसके लर्निंग के, लेकिन एक्चुअली तो ये सब थ्योरेटिकल है, सुपरवाइज लर्निंग चल है बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, ये फीचर्स भी थ्योरेटिकल बात है, ओनली थिंग इज व्हाट यू हैव टू नो अबाउट दिस इज व्हाई न्यूरल नेटवर्क्स आर अडॉप्टेड। वो तो ठीक है कि दे प्रोसेस द सिग्नल जस्ट लाइक अवर ब्रेन डज, लेकिन मेन बात ब्रेन की क्या है, मतलब हम ब्रेन को मिमिक क्यों करना चाह रहे हैं यार। अच्छा, ब्रेन की कैलकुलेशन की जहां तक बात है, ब्रेन की कैलकुलेशन तो बहुत पुअर है यार। अगर तुमसे एक 3 डिजिट बाई मल्टीप्लाइड बाई 3 डिजिट नंबर दे दें तो एक महाभारत हो जाएगी, है ना। 3 डिजिट को तुम 3 डिजिट करने के लिए पहले तो लिखोगे, फिर उसको शकुंतला देवी को छोड़ दो, देयर वाज वन शकुंतला देवी, शी इज डाइड, है ना, ठीक है ना, उसको छोड़ दो। आम कॉमन आदमी के बस का नहीं है। कंप्यूटर यार मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन साला पर सेकंड करता है ना। कंप्यूटर एक ही जगह पे स्कोर करता है और ह्यूमन बीइंग, वो है कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इट कैन डू एक्सपोनेंशियल क्या, लॉग क्या, और ये क्या और वो क्या, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो बहुत छोटी बात है। एट दैट रेट मेगा 10⁶ के हिसाब से करता है पर सेकंड, विच तुम तो एक सेकंड में उस नंबर को लिख भी नहीं पाओगे ठीक है ना। बट एट एवरी अदर पॉइंट आवर ब्रेन स्कोर्स, एक बात को छोड़ के हर बात में ब्रेन अच्छा है, ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग तो देख लो, है ना, एनवायरमेंटल सेंसिंग तो देख लो, है ना, और जितना डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग ब्रेन की है उतनी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग कंप्यूटर की नहीं हो सकती। वो तो न्यूरॉन्स का ही से पता लग ही रहा है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए मैनर कि क्या भयंकर पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग हो रही है ना। कंप्यूटर में कितने तुम प्रोसेसर लगाओगे, 1 लाख लगा दोगे क्या? 10⁻15 प्रोसेसर लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते। सबका सर डिजाइन अलग अलग होगा। हाँ वही तो, ये सारे न्यूरॉन अलग अलग है, पता नहीं कौन सा क्या कर रहा है। तो इतना पैरेलल प्रोसेसिंग कंप्यूटर में पॉसिबल ही नहीं है, चाहे साला सुपर कंप्यूटर का डैडी भी बना लो तुम, ठीक है ना, वहां पे भी इतने प्रोसेसर नहीं लगेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा क्या है ब्रेन में, ब्रेन जो है वो फॉल्ट टॉलरेंट होता है। मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है ब्रेन की, दैट इज फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब मैं तुम्हें बताता हूं क्या मतलब है। फॉल्ट टॉलरेंस का एग्जाम्पल देता हूं, तुम खुद ही समझ जाओगे। सपोज करो तुम एक रेस्टोरेंट, यू गो टू ए रेस्टोरेंट, है ना, देर आर मेनी पीपल इन द रेस्टोरेंट एंड एवरीबडी इज टॉकिंग, तो देर इज ए नॉइज है, everybody is saying something, ladies are saying to their husbands, they are scolding them and all those things. अब क्या होता है कि why did you go to the restaurant? To meet your girlfriend यार, है ना तो अपने गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे, अभी गर्लफ्रेंड आई नहीं है, and you are sitting, झक मार रहे हो यार बेकार में। Suddenly she comes, you are not able to see her, तुम्हारा बैक जो है वो डोर की तरफ है। She comes and she calls your name from a far distance, है ना, even not even name यार, नो नेम को भी छोड़ो, चलो तुम, उसने किसी और का भी नाम लिया हो, बट उसकी वॉइस यू आर एबल टू हियर, तुम बिना मुड़े समझ जाओगे कि यार मेरी गर्लफ्रेंड आ गई है, ठीक है ना। ऑल्दो सो मेनी पीपल आर मेकिंग नॉइज इन द रूम, दैट रेस्टोरेंट, है ना, ऑल दोज नॉइज इज गोइंग इनटू योर ईयर्स, इवन देन यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज हर वॉइस, है कि नहीं? कैसे?
क्या हो रहा है उस टाइम ब्रेन में, कभी सोचो कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड की वॉइस को कैसे पहचान लेते हो इतने शोर में से भी, बिकॉज योर ब्रेन इज फॉल्ट टॉलरेंट. It is able to decipher between that voice from other voices. यानी कि सिग्नल में अगर थोड़ी बहुत नॉइज भी है, even then our brain is able to filter out that noise and जो whatever is of our interest, that means the signal, है ना, उस पे हम उसको अंदर अपने ले लेते हैं. We are able to process that. Are you getting me? This is called fault tolerance basically. ठीक है ना, कि थोड़ा बहुत अगर गलती शलती इधर है वो भी है, ब्रेन एज फिल्टर आउट करके मारता है ना, परफेक्शन के साथ में. कि गर्लफ्रेंड भी दंग रह जाती है कि मेरी आवाज कैसे पहचान ली इसने बंदे ने, है कि नहीं है. तो दैट इज न्यूरल नेटवर्क्स. बेसिकली हम यही चाहते हैं न्यूरल नेटवर्क से. इवन इफ दे आर नॉट ट्रेन परफेक्टली, 90% भी ट्रेन हो गया, बाकी 10% को तो वो डील कर लेगा. इतना फॉल्ट टॉलरेंट होता है वो कि बाकी 10% के लिए जरूरत नहीं है फिर उसको. ठीक है ना. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स. ठीक है. चलो लिमिटेशंस भी है, बहुत सारे लिमिटेशंस हैं. ब्रेन जैसा तो है ही नहीं, है ना, ब्लैक बॉक्स है हमारे लिए, कुछ पता लगता नहीं यार है क्या इसमें. खैर ये दिस इज, मैं आइडिया तुम्हें देना चाह रहा था, फजी लॉजिक का आइडिया देता हूँ. ठीक है ना. फजी लॉजिक का आइडिया इस तरह से देखो, तुम्हारे पास में नाउ यू हैव स्टडीड क्रिस्प सेट्स. वो तो तुमने मैट्रिक में पढ़ा ही था ना कि देयर आर सेट थ्योरी में. और सेट्स जो होते हैं, सम एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेट एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स डू नॉट बिलोंग दैट पर्टिकुलर सेट. ठीक है ना, दे आर आउटसाइड द सेट. सो देयर इज ए टोटल यूनिफॉर्म सेट ऑफ डिस्कोर्स, मतलब जिसको बोलते हैं ना, पूरा एक यूनिवर्सल सेट होता है एक, है ना, और सब उसके सबसेट हैं. और किसी भी सबसेट को कोई एलिमेंट बिलोंग कर भी सकता है. उसको बिलोंग नहीं करेगा तो कंप्लीमेंट सेट को बिलोंग करेगा, ए को नहीं करेगा. अगर ये 11 बजे तक बोल रहा होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं, 1 बजे तक घूमते. ठीक है ना. ओके, सो दैट मीन्स सेट थ्योरी इज लाइक दैट, आइदर एन एलिमेंट will belong to a set or it will not belong to a set. आप suppose कर लो, I will give you an example. There is a set of old people. There is a set of old people. And suppose we define that persons who are more than 60, let us say, they belong to the set of old people. Other persons, definitely who are less than 60, they will be assumed as called young. They will not be belonging to that set. अब मुझे बताओ कि 59 इयर्स का या मेरी तरह से 57 इयर्स का एक बंदा है, ठीक है ना, मैं तो यंग में आ गया बाय डेफिनेशन, मैंने डिफाइन किया था 60 इज द थ्रेशोल्ड. जो 61 का है वो बेचारा ओल्ड हो गया, उसे सब अंकल जी कह रहे हैं मुझे भाई साहब कह रहा है. कहने वाले तो चलो पता नहीं कहां से अंकल जी शुरू कर देते हैं, लेकिन इवन देन, ठीक है ना यार, उसको तो बहुत बुरा लगेगा. बंदे को बुरा नहीं लगे, लेडी का सोचो यार उसको कैसा लगेगा. आंटी कहो किसी को और किसी को बहना कहो, यार बड़ा फर्क है. ठीक है ना. तो ये यार अन्याय कर रहे हो ना उसके साथ में तुम. ठीक है ना, कि 60 वाले को तुमने कर दिया, 59 वाले को दैट मीन्स तुम यंग में ले आए, 61 वाले को तुम ओल्ड में ले आए, है ना. बहुत ना इंसाफी है यार, ये ऐसे नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स नहीं होना चाहिएगा तो फिर क्या होना चाहिए, हम कुछ करें ना इसके लिए, क्या ना, कि 59 वाले को हम यार चल तुझे यंग तो नहीं कहा जा सकता, ये तो पक्की बात है. उसको हम ये कह सकते हैं तू यंग तो नहीं है, हालांकि तू बहुत ओल्ड भी नहीं है, लेकिन तू यंग तो नहीं है. कुछ ओल्ड है कुछ यंग है ना. दिस इज द वे आवर ब्रेन आर्गूज. हम अपने ब्रेन में ऐसा सोचते हैं, है ना, ऐसा ही सोचते हैं ना. फजी लॉजिक वही है कि हम किस तरह से रीजनिंग करते हैं. ठीक है ना. कभी भी हमारी रीजनिंग लाइफ में क्रिस्प नहीं, हार्डली कभी क्रिस्प होती है. हाँ, अनसर्टेनिटी हर एक चीज के साथ एसोसिएटेड है. अगर मुझे गर्मी लग रही है तो मैं ये कहूंगा यार थोड़ा सा इसका टेम्परेचर जो है मतलब इसका कम कर दो सेटिंग इसकी. ठीक है ना, 24 की जगह 23 कर दो, है ना. ठंड लग रही होगी, थोड़ा सा, वो थोड़ा सा क्या है यार, ये थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है. ठीक है ना. तो फजी लॉजिक जो है यहीं से इवॉल्व हुई.
बेसिकली अगर तुम ये सेट देखो जो मैं एग्जांपल दे रहा था, देयर इज अ सेट ऑफ ओल्ड पीपल। अगर तुम क्रिस्प लॉजिक लेते हो तो दैट मींस लेट्स से 80 लिखा है, 60 जो भी कुछ है, फर्क नहीं पड़ता। मोर देन 80 विल बिलोंग टू द सेट ऑफ ओल्ड पीपल, लेस देन 80 विल नॉट। ठीक है ना, तो इसीलिए 0 1 वाली बात आ गई। अगर मैं इस टाइप का कर्व लेता हूं ना, ये बिटवीन नंबर ऑफ वो ये बिलोंगिंगनेस, मतलब डिग्री ऑफ बिलोंगिंगनेस और एज के बीच में, है ना, तो तुम देखो कि 65 ईयर्स का आदमी, he is belonging to this set of old people 50%। 0.5 लिखा है ना, 0 भी लिखना चाहिए था, 0 के बिना मजा नहीं आता, है ना। 50%, 75 years old person is belonging to the set by an amount of 90%। और नेचुरली फिर 80%, 80 years का तो हो ही जाएगा, दैट इज 100% ओल्ड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन दूसरों को भी हमने यंग रहने का चांस दिया, मोगाम्बो खुश होगा इससे, दैट्स आइडिया। तो दिस इज कॉल्ड फजी लॉजिक बेसिकली। तो जब फजी लॉजिक आती है तो इसका मतलब हमको ये जो चीज है, ये जो कर्व है, दिस इज कॉल्ड मेंबरशिप फंक्शन, है ना, which defines the degree of belongingness to a set, that's called membership function। ठीक है ना, तो ये देखो और नेचुरल मेंबरशिप फंक्शंस हैं, नेचुरल हैं बिल्कुल। यहां पे हमने 3 4 डिफाइन किए हैं, यंग बट नॉट टू यंग, नॉट यंग एंड नॉट ओल्ड, मोर और लेस ओल्ड। तो मतलब ये जो सेट्स है ना, दीज आर कॉल्ड फजी सेट्स, है ना। एक सेट इन लोगों का है, एक सेट इसका, एक सेट इनका, एक सेट इनका, कॉरस्पॉन्डिंगली दीज आर द मेंबरशिप फंक्शंस, है ना। तो इनको हम लिंग्विस्टिकली इस तरह से वो कैरेक्टराइज करते हैं, डिफरेंट सेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे। वो क्या नाम रखते हो वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है ना। ये तो खैर नेचुरल वे में हम सोचते हैं, लेकिन नॉर्मली हम जो करते हैं, जो प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, वो इस टाइप से है। देखो ये मेंबरशिप फंक्शन है, आइदर वी एज्यूम ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन और ट्रेपेजॉइडल, है ना। और कहां से कहां तक है वो सब देख लो, दैट मीन्स एनी पर्सन, यू कैन सी योरसेल्फ। ये देखो येलो है लेफ्ट वाला, दूसरा वाला वायलेट है, वायलेट तो उधर तो दिखाई नहीं दे रहा, सेकंड वायलेट है। एनी पर्सन विच इज लेट्स से, इसको क्या किया जाता है ना, दे आर नॉर्मलाइज्ड, जनरली जो इनपुट वैल्यू है दैट इज नॉर्मलाइज्ड। दैट मीन उधर भी मान लो 80 ईयर्स का आदमी है, तो 100 ईयर्स का अगर तुम लाइफ स्पैन मानते हो, तो उसका जो वैल्यू है वो 0.8 हो गई, उसकी एज जो है, नॉर्मलाइज्ड एज इज 0.8, है ना। तो हमेशा ये नॉर्मलाइज्ड वे में, उसको एक्चुअल के साथ में मल्टीप्लाई कैन ऑलवेज बी डन, मल्टीप्लिकेशन। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर है जैसे 0.2 है जिसकी वैल्यू, इनपुट वैल्यू, हम एज नहीं बोलेंगे, कुछ भी कहो, टेम्परेचर कहो, कुछ भी, that is belonging to the set A also, that is belonging to the set B also, with different membership values, different belongingness। समझ रहे हो, ठीक है ना। कितना किसको बिलोंग कर रहा है वो ग्राफ से तुम रीड कर सकते हैं ना। तो ये वो है। एंड देन व्हाट इज डन इज, जनरली जो फजी लॉजिक है वो कंट्रोलर्स में यूज की जाती है ना। तुम्हारी जैसे वॉशिंग मशीन है, उसका जो कंट्रोल एक्शंस है ना, वहां पे अगर ये रियली इंटेलिजेंट वॉशिंग मशीन है, तो डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ डर्ट, कितना डर्ट है, कितना तुम्हारा कपड़ा है ना डस्टी डर्टी है, उस पे बेस्ड जो है ना, जो तुम्हारा डिटर्जेंट है वो मिक्स होगा वाटर में, है ना। तो दैट इज फजी बिलोंगिंग, है ना। तो ये जनरली कंट्रोल सिस्टम, जो फजी बेस्ड कंट्रोल सिस्टम होते हैं, वो ये होते हैं कि जो इनपुट है वैल्यू, दैट इज फजीफाइड। उसके बाद में देयर इज अ सेट ऑफ रूल्स बेस्ड ऑन फजी वैल्यूज, दैट इज कॉल्ड इन्फ्रेंस इंजन। जो कि कौन से रूल सारे नॉलेज बेस में स्टोर्ड रहते हैं। नाउ विच रूल्स आर एप्लीकेबल, वो डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट वैल्यू, कौन सा रूल फायर होगा, उस कोई जरूरी नहीं कि एक ही रूल लगे। इफ वैल्यू ऑफ ए इज दिस, वैल्यू ऑफ बी इज दिस, देन द आउटपुट इज दिस। अब ऐसे ऐसे कई सारे रूल्स है, तो हो सकता है मोर देन वन रूल डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट वैल्यू फायर हो जाए, है ना रूल। तो जो भी फायर हुए उसके अकॉर्डिंग फजी आउटपुट आ जाएगा। फजी आउटपुट को फिर हम क्रिस्प आउटपुट बनाते हैं, दैट इज प्रोसेस कॉल्ड डीफजीफिकेशन, है ना। फिर प्लांट में जो एक्शन लेना है वो ले लेते हैं। तो ये वही सारा ये चल रहा है, ये डीफजीफिकेशन का
मेथड है, ठीक है ना, सेंटर्ड मेथड बोलते हैं इसको हम। वो कौन कौन से रूल्स फायर हुए उस पर बेस्ड याद बनाया जाता है, ठीक है ना। फिर इसका सेंटर्ड निकाल के क्रिस्प वैल्यू आ जाती है। तो देखो मैं तुम्हें प्रैक्टिकली बात जो बताना चाह रहा था, जिसके लिए मैं एक्चुअली ग्रे नंबर्स में ग्रे सारे ग्रे नंबर्स हैं, फजी ग्रे वैल्यूज। नंबर और फजी में क्या अंतर है सर? क्योंकि वो भी पार्शियल इंफॉर्मेशन और ग्रे नंबर से तुम्हारा क्या मतलब है? ग्रे नंबर किस? ये रहता है सर कि जब इंफॉर्मेशन फुली नोन ना हो और फुली अननोन ना हो, मींस पार्शियल इंफॉर्मेशन नोन हो, तभी हम ग्रे नंबर्स यूज करते हैं। हाँ बीच का इंफॉर्मेशन, हाँ हाँ, तो ग्रे है ना ये फजी में तीन, तो जैसे ट्रायंगुलर ले रहा है, ट्रापेजोइडल ले रहा है, इंटरवल वैल्यू फजी नंबर ले रहा है, हाँ हाँ हाँ, तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा अपने को ग्रे के ऊपर? अभी से ग्रे नंबर ना चूज करके अगर हम इंटरवल वैल्यू फजी नंबर या ट्रापेजोइडल फजी नंबर चूज कर रहे हैं, तो कौन सा ज्यादा अच्छा? नहीं फजी का जो है, फजी ग्रे ही है, ठीक है ना। ग्रे में 2 डिजिट्स है, ट्रापेजोइडल में 4 डिजिट्स है, फॉर एग्जांपल होता है 4 डिजिट। नहीं ग्रे में 2 डिजिट का क्या मतलब, वो नहीं मैं समझा। ग्रे में 2 डिजिट नहीं बाउंस हमें हमें जो है बाउंड से नहीं लेना। बाउंड तो इसमें है ही है कि देखो एक मिनट, बाउंड तो ये वैल्यू सुनो सुनो देखो, बाउंड तो ये है कि ये पर्टिकुलर फजी फंक्शन जो है, मेंबरशिप फंक्शन जो है, दैट इज डिफाइंड लेट अस से फ्रॉम पॉइंट 1 टू ये जो है ना 2.5, वॉयलेट वाला या रेड वाला देख लो, 0.39 से लगा के पॉइंट लगभग 0.35 या 0.36 से लगा के रेड वाला 0.62 तक है। वो तो इसका रेंज हो गया, वो तो रेंज हो गया है ना, चाहे वो तो ट्रायंगुलर ट्रेपेजॉइडल में तो कोई, वो तो रेंज हो गया। बिलोंगिंगनेस जो है हमें वो भी तो चाहिए, जो फजी की जो मैथमेटिक्स डेवलप की गई है ना, पूरी कंप्लीट मैथमेटिक्स है इसमें अंदर, ठीक है ना, वो दैट मेक्स यूज ऑफ दोज वैल्यूज। इसलिए हम मेंबरशिप फंक्शन कितना बिलोंगिंगनेस है, मेंबरशिप फंक्शन को कहां ये वैल्यू कट कर रही है, वो हमें चाहिए उस मैथमेटिक्स को अप्लाई करने के लिए। जैसे सेट थ्योरी में की मैथमेटिक्स है ना, ऐसे इनकी एंडिंग, ऑरिंग, कंप्लीमेंट, सारा है इसमें, सेट थ्योरी है ये पूरी। ओनली थिंग है फजी सेट थ्योरी है। तो ये मैथमेटिक्स को ऑपरेट करने के लिए चाहिए। वो सारे जो मैं बता रहा हूं ना कि तुम प्रोग्राम लिखोगे तो वो प्रोग्राम जो है उसमें यूज होंगी ये वैल्यूज ना, तब एग्जैक्ट आउटपुट आएगा, मतलब मोस्ट एक्यूरेट आउटपुट आएगा। मतलब इसलिए हमने ये सारे धंधे किए हैं, ठीक है ना। तो देखो मैं इसका बता रहा था तुमको, एनेस्थीसिया का जो बता रहा था कि है, ये तो तुम आधा तो मैंने बता ही दिया कि यू वांट टू फाइंड आउट द लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस। तो उसके लिए क्या किया, ईईजी ले लिया हमने, है ना। अब ईईजी के पैरामीटर्स उसके बाद में फाइंड आउट किए, टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में, विच पैरामीटर्स आर अफेक्टेड बाय द एनेस्थेटिक डोज, है ना। उन पैरामीटर्स को फिर हमने जो था उन पे दिया न्यूरल नेटवर्क के इनपुट पे, और लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस कितना है ये डॉक्टर से पूछा। और तो कोई स्टैंड हमें है नहीं। देखो कोई पर्सन मान लो 100, जब व्हेन ही इज अवेक एंड इन फुल कॉन्शियसनेस, हम उसको 100% मान लो बोल रहे हैं, ठीक है फाइन। लेकिन आफ्टर मेडिकेशन, आफ्टर ड्रग, वो कितना अनकॉन्शियस हो गया ये पता लगाने का क्या मेथड है, हाउ टू कैलिब्रेट द सिस्टम, है ना। तो गोल्ड स्टैंडर्ड है नहीं इस बारे में, ऑफकोर्स है वही पेट जो है ना, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, उससे स्टेट्स निकलती हैं, लेकिन वो तो फिर हर पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत मुश्किल है ना ये तो डॉक्टर इज द बेस्ट थिंग। डॉक्टर बता सकता है कि इस टाइम ये पर्सन जो है इतना है, फजी वे में ही सही, किसी भी तरह ना, इस टाइम और ज्यादा हो गया और ज्यादा हो गया, तो उसको हमने क्वांटिफाई किया, है ना? और उसके हिसाब से सिस्टम को फिर ट्रेन किया उसमें न्यूरल नेटवर्क को। तो न्यूरल नेटवर्क फिर जब ट्रेन हो गया, वही मैंने कहा जब तुमको कहा कि मैंने 15 ईयर्स तक उस कंपनी ने ट्रेन किया है जिसने मार्केट में अपना प्रोडक्ट दिया है। दे हैव ट्रेन्ड द न्यूरल नेटवर्क फॉर 15 ईयर्स। हाउ कितना मैसिव डेटा दे मस्ट हैव एक्यूमुलेटेड, है ना। उसके बाद में वो प्रोडक्ट अब मार्केट में है। लेकिन करते रहो पेशेंट्स के साथ में। एक ही एग्जांपल है, टी की क्वालिटी का फाइंड आउट करनी है आपको। टी की क्वालिटी से इसका प्राइस डिटरमिन होता है, पता है ना सबको, है ना। जितना भी एक्सपोर्ट होता है हमारे यहाँ से, इंडिया 3rd एक्सपोर्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कंट्री है,
तो ये जो चाय के बागान होते हैं ना, तो यहाँ से जो टी जाती है 35,000 40,000 रुपए किलो की टी बिकती है यहाँ से। नो दैट, वो टी हमें देखने को भी नहीं मिली आज तक। ठीक है ना, कभी मिलेगी भी नहीं शायद, है ना। हम इसी के लायक हैं जो टी पीते हैं। ठीक, चलो। आइडिया ये है कि हाउ द क्वालिटी ऑफ टी इज टू बी असेस्ड एट प्रेजेंट। इसके लिए क्या होता है, टी टेस्टर्स होते हैं, तो चाय का सिप मारते हैं और क्वालिटी बता देते हैं। ठीक है ना, हालांकि क्वालिटी बताना बहुत डिफिकल्ट है। इवन क्वालिटी एक ऐसी चीज है जो किसी को अच्छी लग सकती है वही चीज, किसी को नहीं। क्वालिटी है और ब्यूटी तो एक, मतलब सारे ट्रेड्स ऐसे ही हैं। तो उसमें क्या होता है कि क्वालिटी, तुम कह सकते हो ये चाय जो माउथफुल जो टी होती है, एक होती है कि भाई चाय पिए ऐसा लगा जैसे मुंह भर गया हो, किसी को तो वो अच्छी लगती है, वो ब्रुक बॉन्ड टाइप, है ना। किसी को लिप्टन टाइप की, कि यार क्या इसकी फ्रेग्रेंस अरोमा जो जिसको बोलते हो ना, क्या है, मजा आ गया, है ना, उसकी सुगंध इतनी अच्छी है। उसमें माउथफुलनेस नहीं होगी, बकबकी सी चाय होगी वो, है ना, उसको बकबकी बोलते हैं। कई लोग कहते हैं रंग नहीं आया, वो रंग वही तो है कि रंग नहीं आया। माउथफुल टी होगी ना, उसमें रंग आएगा। तो मतलब कई तरह से चाय की क्वालिटी डिफाइन की जाती है, लेकिन कोई उसका भी वही बात है कि यार कोई स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। वो भाई जो टी टेस्टर्स है ना, दे आर द स्टैंडर्ड। हाँ, उनको माना जाता है कि यार ये इनको गॉड ने ना ये गिफ्ट दे रखी है। वो 10 साल पुरानी चाय बता देते हैं, अगर उन्होंने एक सिप पहले मारा हो ना तो बता देंगे इस बाग की चाय थी, इस साल में पैदा हुई थी, और वो क्वालिटी फिर लाओ। ठीक है, बेसिकली आइडिया ये कि टी जब फैब्रिकेट होती है, तो ये जो फैब्रिकेशन स्टेप है, 3-4 स्टेप्स हैं, दे आर टू बी कंट्रोल्ड सो दैट द बेस्ट टी इज प्रोड्यूस फ्रॉम दैट प्लांट, है ना। तो किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन सा प्रोसेस इनिशिएट होना है एंड वेयर इट हैज टू स्टॉप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, जिस टाइप फर्मेंटेशन होता है टी का, फर्मेंटेशन इज ऑक्सीडेशन। सबसे पहले टी में से हम मॉइस्चर रिमूवल करते हैं, 70% मॉइस्चर पहले रिमूव किया जाता है, उसको बोलते हैं विदरिंग, है ना। फिर उसके बाद में उसको एक उससे प्रेस से पास करते हैं जहां पे वो बनती है, बन जाती है। जैसे तुमने बीड़ी बीड़ी समझते हो, बीड़ी जो है ना, बीड़ी जब बनती है किसी पत्ती, चाय की पत्ती की, तो उसका जो लसलसा सा वो होता है ना, मतलब लिक्विड, वो उसके सरफेस पे लिपट जाता है। जब किसी चीज को रोल करोगे ना, रोलिंग मशीन बोलते हैं उसको, रोलिंग मशीन में से पास होती है वो टी लीफ जो है, तो वो बीड़ी जैसी बन जाती है और उसका लिक्विड जो है उसकी सरफेस पे आ जाता है। उसके बाद वो सुखाने के लिए कमरे में बिछा दी जाती है, जिसमें लॉट ऑफ वेंटिलेशन इज देयर, है ना। खूब हवा आ रही है, हवादार कमरा, फर्श पे बड़े पे बिछा देते हैं। और जब उससे वो ऑक्सीडेशन बोलते हैं उसको, फर्मेंटेशन या ऑक्सीडेशन एक ही बात है। तो जब उसमें से एक पर्टिकुलर स्मेल आने लगती है ना, वो स्मेल पता कैसी होती है, जैसा एप्पल की स्मेल होती है, सेब जो हम खाते हैं फल, उसकी जैसी स्मेल जैसी स्टार्ट हुई ना, वो टी हटा दी जाती है और उसको ड्राई करने के लिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे करीब भेजा जाता है, जिससे बाकी मॉइस्चर भी खत्म हो जाए और मॉइस्चरलेस टी जो है वो डिब्बे में पैक होती है। इसीलिए जिस टाइम टी का डिब्बा तुम सबसे पहले खोलते हो ना, तब उसकी जो चाय बनेगी विद इन 2-3 मिनट्स वो बेस्ट बनेगी हमेशा। उसके बाद तो उसमें मॉइस्चर आ गया दुनिया भर का। ठीक है, तो ये टी का प्रोसेस है। तो कौन सा प्रोसेस में क्या कंट्रोल करना है सो दैट बेस्ट टी 40,000 रुपए किलो वाली बिके, 5 रुपए किलो वाली ना बिके, मतलब 5 रुपए तक कोई नहीं होती। तो उसके लिए हमने अब टी टेस्टर्स को हमें गायब करना है दिन दुनिया से, वी डोंट वांट देम, है ना। सब्जेक्टिविटी, कार्टेल बना लेते हैं, है ना वो। तो बेसिक, हाँ बस चलते हैं 5 मिनट और है। तो आइडिया यही है कि हम टी की ये देख लें कि व्हाट आर द पैरामीटर्स विच डिफाइन द क्वालिटी ऑफ टी। उसमें बेसिकली फिजिकल पैरामीटर्स हैं और केमिकल पैरामीटर्स हैं। फिजिकल पैरामीटर्स कौन से हैं, टी का साइज, उसकी शेप, कलर, टेक्सचर, मॉइस्चर, डेंसिटी, ये जो है फिजिकल पैरामीटर्स हो गए। और केमिकल पैरामीटर्स कौन से हो गए, उसका अरोमा या फ्रेग्रेंस और टेस्ट। टेस्ट वोलेटाइल की वजह से फ्रेग्रेंस आएगी, जो चीज वोलेटाइल सब्सटेंसेस है, जो नॉन वोलेटाइल केमिकल्स हैं, ठीक है, उनसे टेस्ट आएगा। ठीक है ना, ये पैरामीटर्स हैं। ज्यादातर पैरामीटर्स जो है वो कैमरे से साइज, शेप, टेक्सचर, है ना, ये सब, कलर, ये निकल जाते हैं। डेंसिटी के लिए ऑफ कोर्स डेंसिटोमीटर है, ठीक है ना। मॉइस्चर के लिए मॉइस्चर सेंसर्स हैं। टेस्ट के लिए
मेटल सेमीकंडक्टर ऑक्साइड सेंसर्स होते हैं टेस्ट और अरोमा के लिए, तो उन सबको लेके हमने जो है न्यूरल नेटवर्क में दिया। सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास, और उसकी क्वालिटी जो है डिफरेंट ग्रेडेड टी मंगाई हमने, मतलब जितने बागान थे उनसे जितनी टी मिल सकी कि ये इस ग्रेड की टी है, ये 7 है आउट ऑफ 10 स्केल, ये स्केल है, ये कभी वो प्राइस वाइज वाल लिख के भेज देते हैं तो हम ग्रेड खुद कर लेते हैं कि जिसका प्राइस ज्यादा है यार वो टी अच्छी है, बस बात खत्म। तो न्यूरल नेटवर्क को उन सब चीज से हमने ट्रेन करा दिया जी, है ना। इनपुट्स दिए, कलर, टेक्सचर, ये टेक्सचर के भी 5 पैरामीटर्स हैं, होमोजेनिटी है, ये वो है उसका, प्रोट्रूजन्स है सरफेस के, तो ट्रेन करा के नाउ द सिस्टम। अब तुम मुझे कोई अननोन टी दोगे, मैं तुम्हें बता दूंगा इसकी क्वालिटी क्या है, लर्न कर चुका कभी न्यूरल नेटवर्क, ठीक है ना, तैयार है। तो दिस द आइडिया ऑफ न्यूरल नेटवर्क, ठीक है ना। देन सिमिलरली जैसे ये रोटेटिंग मशीन्स हैं, रोपर थर्मल पावर प्लांट है, टरबाइंस है, वहां के ब्लेड्स जो है ना देर इवेंचुअली ब्रेक, तो इसका मतलब पावर प्रोडक्शन स्टॉप हो गया ना। दिस शुड नॉट हैपन, बिफोर हैंड यू शुड नो कि ब्लेड इज गोइंग टू ब्रेक सो दैट द न्यू ब्लेड कैन बी अरेंज्ड, एंड हम तैयार हैं, है ना। एक तरह से प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस जिसको बोलते हैं। तो इसमें आइडिया ये है कि हम अगर उसके वाइब्रेशन सिग्नल को एनालाइज करें, और जिस टाइम एक्चुअली जब ब्लेड ब्रेक होता है तो उससे पहले एकॉस्टिक एमिशंस होते हैं उसके अंदर, जब भी कोई चीज ब्रेक होगी तो पहले क्रैक होगी, है ना, क्रैक होगी तो एकॉस्टिक एमिशन होगा, ठीक है। तो उसके लिए वाइब्रेशन, उसके सिग्नेचर चेंज हो जाएंगे, तो दैट्स आइडिया। तो उससे हमने इसको ट्रेन करके। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फील्ड महाराष्ट्र। यस सर, एनी डाउट्स? नहीं सर, आवाज नहीं आ रही है अपना माइक। हमारे स्पीकर्स थे। हेलो, सर आप टाइप ही कर लीजिए। नो डाउट, ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ओके हेलो हेलो, MMU बुलाना, MMU बुलाना, तो अपना टाइप कर दीजिए, हमें ना एक्चुअली आवाज नहीं आ रही है यहाँ, आप टाइप हेलो, टाइप कहाँ से करेंगे? हेलो हेलो, हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हेलो 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 हेलो। तो लेफ्ट साइड पे ना जहाँ गूगल लिखा है वहाँ लेफ्ट साइड पे एक बॉक्स है, हाँ, तो आपका विंडो है गूगल हैंगआउट का, वहाँ गूगल के लेफ्ट साइड पे चैट का ब्लू कलर का सिंबल बना हुआ है, फर्स्ट सिंबल, वहाँ पे जाके आप लिख दीजिए। आया मैसेज? नहीं मैम। चैट कहाँ लिखा है ये? हाँ जी, विजयवाड़ा। चैट कहाँ लिखा है? विजयवाड़ा। गूगल के पास आपकी चैट कर दीजिए, एक्चुअली हमारे सिस्टम में आवाज नहीं आ रही है। आप लेफ्ट साइड पे गूगल के लिंक पे देखो, चैट बॉक्स, प्लीज राइट देयर व्हाटएवर यू वांट टू से। कहाँ चैट लिखा? ये तो सर नीचे पेंसिल के किधर किधर? टेक्स्ट कहाँ पे? ये टेक्स्ट नीचे। अरे हाँ, ये हाँ आर्ट इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद। यहाँ पे चलेगा? हाँ चलेगा। I would like to make an announcement that because it's already 1:30, so now the next session will start at 2.
instead of 2 for the 1 hour lunch. Okay, thanks a lot. I would like to extend my gratitude to Dr. Amod Kumar for coming on our invitation and giving this very interesting talk on intelligent instrumentation. We have seen some very interesting applications of intelligent instrumentation like P and anesthesia and the vibration monitoring of the health, monitoring of the machines, etc. And thanks a lot, sir.